Hello dear students, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 11 statistics, that is permutation and combination, one of the most important chapter for class 11 statistics, and this chapter is going to be very important and very useful in your coming chapters, coming standard 12 statistics also. So make sure you are watching this video very carefully with complete focus. Keep making of note of everything that I am teaching you, and I will try my best to give you the feel of the concept. Start करते हैं. चैप्टर के दो हिस्से कर देंगे हम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परम्यूटेशन. कुछ लेक्चर्स तक परम्यूटेशन की कहानी चलेगी. परम्यूटेशन के इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सॉल्व इन अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक वे, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन. सो वन पोर्शन इज परम्यूटेशन, अदर पोर्शन इज कॉम्बिनेशन. So let us start firstly with the concept of permutation. Okay, before we start this thing, there is something you might be noticing on the board, that is this exclamation sign. That what is this exclamation and how to read all this thing. So we are going to discuss about permutation, but first of all, just along with me read this thing, that it is NPR, that is equal to n factorial upon n minus r factorial. रीड कर लो ये फॉर्मूला. ये एक ही फॉर्मूला है जो आपको परम्यूटेशन में हर एक न्यूमेरिकल में लगानी है. क्या है फॉर्मूला में, क्या होता है फैक्टोरियल, परम्यूटेशन क्या होता है, n क्या है, p क्या है, r क्या है, वी विल सी एवरीथिंग. बट जस्ट राइट नाउ मगअप लर्न कर लो, बोल जाओ, 2-4 बार बोल जाओ इस चीज को, दैट NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. वंस अगेन, व्हाट इज NPR? NPR is n factorial upon n minus r factorial. Now let us discuss about this. What is factorial, what is n and what is r, by starting the chapter permutation and combination. Permutation का simple English meaning होता है arrangement. Permutation means arrangement. This is permutation equals to arrangement. Permutation का synonym ही है arrangement. तो permutation का मतलब होता है arrangement of things. So as per your textbook definition, it is arrangement of r distinct things. r अलग अलग चीजें, distinct अलग अलग चीजें. Arrangement of r distinct things out of n distinct things. You are having n different things and आपको उनको r distinct तरीके से arrange करना है. तो जितने भी possible arrangements है उन्हें हम कहेंगे permutation. What is permutation in simple language? It is arrangement of n distinct things in r places. अलग अलग जो चीजें आपके पास है, 2 चीज है, 4 है, 5 है, ठीक है, उनको कितने वेज में आपको अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. Okay, let us take example first, then we will see all this formula and everything. Let us take example. We are having 3 balls, red, blue, green, one of my favorite example. कई सारी जगहों पे probability वगैरह सब पे ये काम आ जाता है. We are having 3 balls, one is red, other is blue and green. And suppose if I ask you that, student, can you arrange these 3 balls in different way, and I am asking you in how many ways you can arrange it. What is permutation? In how many ways can we arrange given and distinct items in r different ways. तो अगर मैं आपको कहूं कि इन तीनों को अरेंज करना है, so your answer will be very simple, very logical कि सर red, blue, green, this is the first possibility. Or you can say red, green, blue, this is the second possibility. Some student may arrange it in this way, blue, red, green, or they can arrange in blue, green, red. Also you can arrange in this way, green, red, blue, or green, blue, red. So this 6 outcomes, these 6 are the possible arrangement you can do with 3 balls. So you are having n distinct items and you have arranged them in different ways. So this is permutation. Now you might be thinking कि सर इतनी easy चीज के लिए permutation की formula की क्या जरूर. So I have given you only 3 balls. And you are getting total 6 outcomes. Now imagine if I give you four balls
एड वन मोर बॉल एंड कमेंट योर आंसर। इसी तरीके से कमेंट करके बताओ। यू विल नीड सम टाइम। रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, फिर उसका अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट, है ना। मैं आपको 5 अलग चीज़ें दे दूँ, मैं आपको 50 अलग डिस्टिंक्ट चीज़ें दे दूँ, मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स दूँ और पूछूँ इसको इतने तरीके से अरेंज करो। सो हाउ मेनी पॉसिबल वेज? सो फॉर दैट थिंग यू नीड दिस। जैसे 10th में था ना आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कंसेप्ट था, रिलेटेड विथ ईयर। एरिथमेटिक की फील क्या थी कि भाई इट इज़ अ सीरीज जिसमें आपको पता है कि भाई 50 नंबर पे क्या आएगा, 100 नंबर पे क्या आएगा। सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन काउंट एपी। अगर आपको एपी में ए पता है, डी पता है, मैं कहूँ 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, और मैं आपको पूछूं कि 500 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो गिनने बैठोगे तो भी आंसर आएगा, बट इट विल बी वेरी वेरी लेंथी। इसीलिए आप वो फॉर्मूला लगा देते थे tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फटाक करके आंसर आ जाता था। सो सेम कंसेप्ट ओवर हियर। परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना है आपको 2 का, 3 का, ठीक है, इट्स ओके, 4 का, इट्स ओके, आप खुद से कर सकोगे, लॉजिकली लिख लिख के कर लो। बट जब ज्यादा का होगा तो उस समय पे ये सेम चीज हम फॉर्मूला से ले आएंगे। npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स that you need to arrange. R is number of ways you need to arrange. कितनी चीजों को अरेंज करना है, कितने वेज में अरेंज करना है, एंड दिस इज परम्यूटेशन सिंबल NPR. ओके, कुछ बुक्स में अलग अलग सिंबल्स भी मिलेंगे, दे आर वैलिड। वी विल कंसिडर दिस सिंबल NPR, दैट इज NPR। उसकी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो चलो इस फॉर्मूला के अंदर आप स्टूडेंट्स n के बदले 3 पुट करो और r के बदले भी 3 पुट करो। ओके, एंड फिर इसको सॉल्व कैसे करना है आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल, बट राइट नाउ द मेन थिंग, द कंसेप्ट वाज दिस कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करवाना, अरेंजमेंट ऑफ n distinct things in r different places. Once again, what is permutation? If somebody asks you, it is arrangement of n distinct things in r different places. We were having 3 balls, red, blue and green. This was just to make you understand that how difficult it will be if we are taking 4 balls or 5 balls. Try it. Pause the video and try it कि अगर 4 balls को arrange कराना इस तरीके से जो मैंने यहाँ किया है, it will be very very tough. It will be a lengthy, tedious task for you. You take 5 balls, you take 6 balls. It will be tedious task. So that tedious task can be made easy with the help of permutation. So permutation is all about arrangement. Remember, combination is about selection, permutation is about arrangement. Combination पढ़ेंगे that time you will see it is about selection. Permutation is about arrangement. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। दिस इज वन डिफरेंट अरेंजमेंट, दिस इज अदर डिफरेंट अरेंजमेंट। ब्लू ग्रीन की पोजीशन चेंज हो गई, ऑर्डर चेंज हो गया, तो परम्यूटेशन अलग मिला, अरेंजमेंट अलग गिनाएगा। नाउ लेट अस सी दिस एक्सक्लामेशन सिंबल दैट इज फैक्टोरियल, कि ये फैक्टोरियल की क्या कहानी है और क्या करना है। स्टूडेंट, फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल सिंबल है, एक साइन है, एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल 2 + 2 व्हाट विल बी योर आंसर? You can't give any answer because I have not given you any function. Now if I tell you plus, you will tell sir 4. If I tell you multiply, again you will tell 4. If I tell you minus, your answer will be 0. So this is our function. इसे देखते ही हमारा माइंड वो पर्टिकुलर एक्शन लेता है। फंक्शन एक वो चीज है जिसे देख के हमें एक पर्टिकुलर एक्शन लेना हो। वैसे ही फैक्टोरियल ये आपका एक क्या है, सिंबल कहो या एक फंक्शन है, जिसमें आपको जो गिवन नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अगर आपको दिया है 3 फैक्टोरियल, क्या दिया हुआ है? 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 फिर मल्टीप्लाई। अब 3 के जस्ट नेक्स्ट एक डिक्रीज करो तो क्या आएगा? 2
आपको कब तक ये करना है, जब तक 1 ना आ जाए, 1 तक जाना है। तो 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल देखते ही आपको ये करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है टिल यू रीच 1, और सारे के सारे इंटीजर्स लेने हैं। दिस इज इक्वल्स टू 6। वैसे 2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 2 फैक्टोरियल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ तक जाएंगे हम, 1, that will be 2. What will be 1 factorial? It will be 1 itself. What is 0 factorial? 0 factorial 0 नहीं है, 1 है, याद रखना। किसी दिन टाइम मिला तो मैं प्रूफ बताऊंगा। There are several videos available on YouTube जहाँ से आप ये एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि 0 फैक्टोरियल को 1 साबित करना, कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों है, कैसे है। राइट नाउ वी एक्सेप्ट इट, 0 फैक्टोरियल 1 है, क्योंकि फैक्टोरियल कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो और सबसे कम से कम 1 तो होना चाहिए। तो 0 फैक्टोरियल है 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। वॉट विल बी 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, इट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 into 1, that is 4, 3s are 12, 2s are, what will be 5 factorial, it will be 120. How, 5 into 4 into 3 2 1, 5 4s are 20, 26 are 120. So getting the concept of factorial, easy। फैक्टोरियल का रूल क्या है, दिस इज द रूल ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल फंक्शन है। Okay, so I hope so you got the feel of this, how to solve a factorial. You may, if you wish, you can take a screenshot of this thing. You may practice some other factorials, find out 7 factorial, find out 9 factorial, find out 25 factorial. Okay, now let us understand the formula of permutation. This formula, suppose student, this formula, if I tell you phi p4, तो इसे रीड कैसे करेंगे, phi p4, इसकी फॉर्मूला बनेगी phi फैक्टोरियल अपॉन phi माइनस 4 फैक्टोरियल। एंड व्हाट यू विल गेट, phi फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज और नीचे phi माइनस 4 1 फैक्टोरियल। तो आपका इस क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर क्या आया, फिर फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट मत करना, 5 फैक्टोरियल का आंसर ऊपर आएगा 120 और 1 फैक्टोरियल 1, सो यू विल गेट आंसर 120। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। सो आई होप सो यू आर गेटिंग हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ट्राई इलस्ट्रेशन 1 योरसेल्फ। इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है, पॉज करो, आपकी स्क्रीन पे मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे दिया है। इलस्ट्रेशन 1 के क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, ऑन योर ओन, कोई ज़रूर नहीं है टेक्स्ट बुक की मेथड देखने की, ऑन योर ओन ये एक फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करो इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई विल हेल्प यू आउट आफ्टर, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे, ज़रूर पड़ी तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 फिर से, बट यू ट्राई इट योर सेल्फ एंड कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब स्टूडेंट आपने देखा phi p4 अल्टीमेटली हुआ 5 फैक्टोरियल, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी डिराइव करके रख ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल np0, किसी भी डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, चाहे 10 हो 15 हो 20 हो, उनका जीरो अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट नहीं, जीरो प्लेस पे, तो भी एक तो पॉसिबिलिटी है ही है, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज प्रूव्ड, ये प्रूव्ड है। अगर आप ये फॉर्मूला में रखोगे np0, यहाँ पे n और फिर r के बदले 0, देन यू विल गेट आंसर 1। चेक कर लो, np0 को यहाँ पुट करो। ओके, सो इफ आई एम पुटिंग np0 ओवर हियर, सो np0 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल क्या होगा, 1। तो मैं सभी का प्रूफ नहीं दूंगा, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू एक्सेप्ट इट। सबसे अच्छी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कैसे आया वो जरूरी नहीं है, आपको लर्न करना है, ये जरूरी है। दिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
आपको लर्न करनी है, लर्न बाय हार्ट, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, वरना फिर हर जगह पे ऐसे डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। सो चलो लर्न करते हैं इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला है NP0 इज इक्वल्स टू 1। किसी का भी परम्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, जीरो वेज में तो 1 है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर है 5P0, आंसर क्या आएगा 1। चाहे हो 10P0, आंसर क्या आएगा 1। ओके, लेट अस सी दिस। NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यानी कि अगर ऐसा कुछ हो 5P5 तो आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। अगर ऐसा कुछ हो 10P, ओके, लेट अस मेक मोर स्पेस ओवर हियर। इफ इट्स 10P10, अगेन आंसर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल। सो NPN इज n फैक्टोरियल। NP0 1, NP0 1, NP0 0 तो 1 वे तो होगा ही होगा, एक अरेंजमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। NPN यानी 5 चीज़ों का 5 वे में, 10 चीज़ों का अरेंजमेंट 10 अलग तरीके से, 100 चीज़ों का अरेंजमेंट 100 तरीके से, तो NPN n फैक्टोरियल, NPN n फैक्टोरियल। ओके, देन okay, you can see this number 2 and number 4 are having same answer, और इसी से मैंने नंबर 5 बनाया है कि NPN और NPN-1 आर सेम। तो पहले तो ये देख लो कि NPN-1 क्या है। ये रहा NPN-1, NPN से एक कम, यानी अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखे 5 उसका परम्यूटेशन और 4, तो देखो ऊपर 5 है नीचे एक कम है, तो सीधा आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। कहीं ऐसा दिख जाए 10P9, क्या आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल। इसीलिए लिखा है फॉर्मूला NPN-1, n नंबर ऑफ थिंग्स, उनका अरेंजमेंट उनसे एक कम, 100 चीज़ों का अरेंजमेंट 99 तरीके से, आंसर 100 फैक्टोरियल। तो बड़ा इजी हो गया। हम पहले इसको लर्न कर लो, n फैक्टोरियल वाले दोनों को। लर्न दिस 2 फॉर्मूलास, और दोनों को लर्न करने के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि NPN हो या NPN-1 हो, दोनों का आंसर n फैक्टोरियल है। NP0 इज 1, NP0 इज 1, NPN या NPN-1 विल बी n फैक्टोरियल। तो एक वैल्यू लर्न करनी है आपको 1 वाली, और ये है n फैक्टोरियल वाली। तो आपका नंबर 1 2 4 5 खत्म। अब सिर्फ बचा ये कि अगर एक ही तरीके में अरेंज करवाना हो NP1, तो आंसर आएगा n। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 थिंग्स, उनको किसी एक वे में अरेंज करना है, आंसर है 5। 10P1, आंसर आएगा 10। आप समझते हो ना, या 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना होगा 10 × 9 × 8 × 7, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो, जबकि यहाँ 10 मतलब डायरेक्ट आंसर है 10। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब है कि 5P5 वो 5P4 के बराबर होगा, 10P10 वो 10P9 के बराबर होगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट बना के मैंने रख दिया है, काम आ सकता है आगे, बट आपको 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने हैं। चलो कौन से NP0 1, NPN NPN-1 will be n फैक्टोरियल एंड NP1 इज इक्वल्स टू n। 3 ही तो याद रखने यार, बड़े इजी है। n का p परम्यूटेशन 0, NP0 1 बोलना है आपको। ये वीडियो भले आप देख रहे हो, बट फील इट दैट यू आर वाचिंग मी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। बोले है ना बोर वेचाए, रिमेंबर आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियोस, बोले है ना बोर वेचाए, बोलो, साथ में बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। NP0 इज 1, NPN या NPN-1 इज n फैक्टोरियल एंड NP1 इज इक्वल्स टू n। NP0 1, NPN या NPN-1 इज n फैक्टोरियल एंड NP1 इज n। ये 3 रिलेशन अगर आपको लर्न है तो अच्छे से इजी वे में न्यूमेरिकल्स होगा, और अगर लर्न नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला से सब सॉल्व हो सकता है। थोड़ा लेंदी होगा बट सॉल्व जरूर हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द
introductory lecture of permutation. Now as I have solved one question over here, you can try illustration number 1 yourself. Okay, not having time to complete this lecture, illustration 1 continue हो सके उतना टाइम नहीं है. I need to end this lecture over here. So will be taking maybe illustration 1 में next video में cover करवा दूंगा, but you try it yourself. I'm giving you a homework that is illustration number 1. You can try 2, 3, 4, 5. ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड बिलीव मी न्यूमेरिकल पोर्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ही मजा आएगा आपको. बट एक चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज 2 डिफरेंट थिंग्स यू नीड टू नो. 11th के स्टूडेंट हो, टेबल्स थोड़े बहुत आने चाहिए, स्क्वायर थोड़े बहुत आने चाहिए. थोड़े बहुत इन द सेंस 1 से 20 तक के टेबल, 1 से 20 के स्क्वायर, 1 से 20 के क्यूब. यू शुड नो. नहीं आते थोड़ा सा टाइम निकालो और कर लो, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपका कैल्सी से ज़्यादा माइंड यूज़ होगा. हर जगह पे बार बार 5 फैक्टोरियल तो कैल्सी निकालने नहीं बैठना है आपको. ठीक है, यू हैव टू लर्न सम वैल्यूज़. कुछ चीज़ों का ओरल मल्टीप्लिकेशन आपको होना चाहिए. ठीक है, फिर ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन जो आते हैं कि भाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और आप कैल्सी लेके बैठो, दैट विल बी वेरी वेरी पुअर, वेरी वेरी बैड. तो पहली चीज़ आपको थोड़े बहुत टेबल्स, बेसिक मैथ्स आना चाहिए. और सेकंड ये वाली फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. और ये कुछ रिजल्ट, 3 रिजल्ट अगर आपको आते हैं, देन इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा. बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी पढ़ाने में और पढ़ने में, समझने में, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. सो वन लास्ट टाइम बिफोर एंडिंग दिस लेक्चर, फुल एनर्जी के साथ रिवाइज कर लेते हैं परम्यूटेशन क्या है. लेट अस कंक्लूड द लेक्चर. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन 2 अलग अलग हिस्सों में हम चैप्टर को पढ़ेंगे. परम्यूटेशन है अरेंजमेंट का नाम, कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन का नाम. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. अब कॉम्बिनेशन को फेंक दो, अगले कुछ वीडियोस में, कुछ 2-4 लेक्चर्स के बाद कॉम्बिनेशन पे आएंगे. परम्यूटेशन क्या है? इट इज इन सिंपल वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ n distinct things in r places. It is arrangement of n distinct things in r places. फॉर्मूला क्या है? NPR is n factorial upon n minus r factorial. NPR is n factorial upon n minus r factorial. 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन से है? NP0 is your 1, NP1 is n, NPn minus 1 is equals to n factorial. सो दिस इज हाउ, इफ पॉसिबल, फिर से मैंने जो अभी आपको बताया, जो रिवाइज कराया, 1 मिनट का जो क्विक रिवीजन था, उसको वापस से देखना, ट्राई करना बोलने की, एंड कीप प्रैक्टिसिंग. इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 आगे जितने कर सको करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे.